Hello students, myself Bafna ma'am. Today, next we will be taking the class of when breach of condition is to be treated as breach of warranty. Till last class we had dealt with the definition of conditions and warranty, and now next we will be continuing breach of condition is to be treated as breach of warranty. Okay, we will start with this. So section 13 of the act, it enumerates certain cases in which breach of condition is to be treated as breach of warranty. Now we will see, as a result of which the buyer loses his rights to repudiate, yani to cancel the contract, and then will have only right to claim the damages. See, when there is a breach of warranty, when there is a breach of condition, it is to be treated as a breach of warranty. Then the buyer will have only to claim the right to damages. See, these cases are as under. See, some of the cases have been discussed here. First, we will see the example here. Waiver by buyer. If the buyer has waived his rights, what it happens? See, P agrees to sell to Q a Hero Honda Splendor motorcycle for 45,000. However, the motorcycle that P delivers to Q is not a Splendor but Hero Honda CD100. Here, Q can reject the CD100 motorcycle and can recover the damages because he had asked for the Splendor motorcycle. But Q decides to keep the CD100 motorcycle and recovers only the damages from P. Here Q has waived the condition and treated it as a warranty only. Okay? Clarity is there here. Even if there is a breach of condition by the seller, the buyer, instead of cancelling the contract or rejecting the goods, decides to waive the condition. यानी जो कंडीशन उसने डाला था कि भाई मुझे स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चाहिए, तो बायर क्या डिसाइड करता है? वो वेव कर देता है, यानी अपने कंडीशंस को उड़ा देता है वहाँ पे. ही वेव्स द कंडीशन. दैट मीन्स ही ट्रीट्स द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी. वो कंडीशंस जो रहता है वो तोड़ देता है. बायर खुद अपने कंडीशंस को तोड़ देता है एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी एंड एक्सेप्ट्स द गुड्स. बाद में एक्सेप्ट करता है गुड्स को, यानी CD100 मोटरसाइकिल को एक्सेप्ट करता है गुड्स एंड फाइल सूट अगेंस्ट द सेलर for the damages for breach of warranty. Okay, waiver by the buyer. Clarity is there here. Very neat, clear example have been given here. So next is acceptance of goods by buyer. Acceptance of the whole of goods. Where the buyer has accepted the whole of the goods and thereafter he comes to know that there is a breach of condition, यानी कंडीशंस टूट गई है, he cannot reject the goods. He can only file suit for damages. Here the law by its own treats a breach of condition as a breach of warranty. Okay. So next here is acceptance of the part of goods. Where the buyer has accepted only part of the goods, यानी आप बायर है, आपने सिर्फ एक स्मॉल पार्ट ऑफ द गुड्स को एक्सेप्ट किया है, एंड इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इनडिविजिबल ही कैनॉट रिजेक्ट. अभी कॉन्ट्रैक्ट डिवाइड कर नहीं सकते, तो बायर रिजेक्ट नहीं कर सकता गुड्स को. इवन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गुड्स विच ही हैज नॉट एक्सेप्टेड. एक पार्ट को एक्सेप्ट किया है, एक पार्ट को नॉन एक्सेप्ट किया है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकते. इन दिस केस ऑल्सो द बायर विल हैव टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी. बट इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल, अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है, द बायर कैन रिजेक्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गुड्स. ओके, विच ही हैज नॉट एक्सेप्टेड.
जिस पार्ट ऑफ द गुड्स को उसने एक्सेप्ट नहीं किया है वो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को वो रिजेक्ट करता है, रिजेक्ट कर सकता है इन द कॉन्ट्रैक्ट इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल. However, in both the cases, the buyer can claim the damages for breach. Both the cases में buyer can claim the damages for breach. यहाँ पे main point A है. Two cases also buyer can claim the damages for breach. Okay, here neat, clean, clear it is there. Clarity is there. Now we will see next distinction between a conditions and a warranty. Now we will see what is the condition and what is the warranty. Meaning of the condition is a condition is a stipulation in a contract for sale of goods which is essential to the main purpose of the contract. Main purpose of the contract is क्या है? Condition. Condition is a stipulation. यहाँ पे warranty is a stipulation which is collateral to the main purpose of the contract. वारंटी का मतलब ए है. वारंटी का मतलब ए भी हो सकता है. कोलैटरल का मतलब समथिंग अदर देन एन इंटेंटेड टारगेट. अगर आपकी शर्त स्टिपुलेशन यानी शर्त, आपने क्या शर्त रखी थी? कोलैटरल यानी समथिंग अदर देन एन इंटेंडेड टारगेट, यानी आपका टारगेट क्या था, आपका मेन मोटो क्या था, उस मेन पर्पस को कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वारंटी का मतलब है. तो इफेक्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन गिव्स द अग्रीव्ड पार्टी ए राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है तो अग्रीव्ड पार्टी टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को. ब्रीच ऑफ वारंटी में क्या होता है? which gives the aggrieved party a right to claim the damages. aggrieved party damages claim कर सकती है but not a right to terminate the contract and reject the goods. यहाँ पे contract terminate नहीं कर सकता, reject नहीं कर सकता goods को, but damages claim कर सकता है वारंटी में. Okay? So here the third point is treating condition as a warranty. What is the treating condition as a warranty? Under certain cases, the breach of condition, when there is a breach of condition, अगर आपकी condition को cancel कर दिया गया है, breach of condition may be treated as a breach of warranty. In certain cases, यहाँ पे certain cases बोला है, but in no case, वारंटी में क्या होता है? बट इन नो केस ब्रीच ऑफ वारंटी कैन बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ कंडीशन. दिस इज द मेन पॉइंट हियर. ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ कंडीशन. ओके, नो इंपॉर्टेंस क्या है कंडीशन एंड वारंटी की? इट इज अ वाइटल इंपॉर्टेंस. द बेसिक कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कंप्लीटेड अनलेस द कंडीशन इज फुलफिल्ड. आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता है जब तक आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती है. It is not of vital importance. The basic contract can be completed if the warranty is not fulfilled. Contract complete हो सकता है अगर even वारंटी फुलफिल नहीं हुई है तो भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो सकता है यहाँ पे. ओके, सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड ए वारंटी. नाउ वी विल सी एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी. What is express and implied conditions and warranties? The conditions and warranties may either be express or implied. यानी आप express भी कर सकते हो या implied भी कर सकते हो. Express condition or warranties are those which are expressed in words, either spoken or written. या तो बोल के भी आइदर वर्ड्स एक्सप्रेस इन वर्ड्स, या तो वर्ड्स के द्वारा बोल सकते हो या लिखित के द्वारा बोल सकते हो. इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी आर दोज विच आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स बट लॉ प्रिज्यूम्स, बट कानून प्रिज्यूम करता है देयर एग्जिस्टेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट. इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी आर दोज विच आर नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स.
दिस इज मेन. बट लॉ क्या प्रिज्यूम करता है, कानून क्या प्रिज्यूम करता है, देयर इज एग्जिस्टेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट. Implied condition and warranties may, however, be negatived or varied by express agreement. Express agreement के द्वारा हो सकता है, और in course of dealings between the parties. जो parties है dealing, in course of dealing between the parties, or by usage or trade. So this is express and implied conditions and warranties. Now we will see detailed implied condition. Condition as to title. In section 14 of subsection A it tells, in a contract of sale, अगर जब contract of sale होता है, there is an implied condition on the part of the seller that if it is a transaction of sale, अगर वो sale का transaction है, then he has a right to sell the goods. वो goods sell कर सकता है. If it is an agreement to sell, then he will have to right to sell the goods at the time when the property यानी ownership is to pass to the buyer. We had already discussed about an agreement to sell and sale. Sale and agreement to sell. Okay? In other words, if the title of the seller is found to be defective, अगर सेलर का टाइटल यानी ओनरशिप डिफेक्टिव है, यानी कोई चोरी का माल रहता है, चोर आके कोई माल बेचता है, तो वो डिफेक्टिव टाइटल है, यानी उसके पास ओनरशिप नहीं है. द बायर गेट्स द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स. इफ द टाइटल ऑफ द सेलर इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, द बायर गेट्स द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स. बायर रिजेक्ट कर सकता है गुड्स को. ओके. कंडीशन एज टू टाइटल. टाइटल यानी ओनरशिप. सेल बाय डिस्क्रिप्शन. कुछ भी आप सेल करते हैं या कुछ चीज खरीदते हैं, तो देयर इज ए सम डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन रहता है ना. वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन. नीचे लिखा हुआ रहता है इम्प्लाइड कंडीशन, that the goods shall correspond with the description. यानी जो गुड्स आप बेच रहे डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होना चाहिए. ओके. Therefore it is the duty of the seller to deliver goods as described by the buyer and not something else. तो जो ड्यूटी है सेलर की, वो डिलीवर करता है गुड्स बायर को. जो बायर ने डिस्क्राइब किया है वही उसको देना चाहिए, ना कि कोई दूसरी चीज उसको देना है. इफ द गुड्स आर नॉट इन अकॉर्डेंस विथ द डिस्क्रिप्शन, अगर मान लीजिए एग्जांपल में देती हूँ, आपने कुछ होटल से पार्सल मंगवाया है कि कहीं भाई नॉर्थ इंडियन भेजना या भाई साउथ इंडियन आप डिस्क्राइब करते हो, तो अगर वो पार्सल आपके हिसाब से नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं. इफ द गुड्स आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द डिस्क्रिप्शन, द बायर इज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स. गुड्स में बी डिस्क्राइब्ड बाय मेंशनिंग द ट्रेड नेम, ट्रेडमार्क, ब्रांड और लेबल अंडर विच गुड्स आर जनरली सोल्ड. एग्जाम्पल हो सकता है आपको शूज़ चाहिए एडिडास का, आपने गुड्स मंगवाए डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, ट्रेडमार्क के हिसाब से, ब्रांड के हिसाब से, तो विच गुड्स आर जनरली सोल्ड. आप एक एग्जाम्पल और एक दिया है, इफ इट इज अग्रीड टू सेल ए वाइट कलर मारुति एर्टिगा कार ऑफ 2021 मॉडल, देन seller is the duty bound to deliver to the buyer a car of same description. जो कार चाहिए उसी के हिसाब से बायर को कार देनी है. तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन. तो इम्प्लाइड कंडीशन ए है. तो कंडीशन दूसरे के ऊपर इम्प्लाई होती है, यानी सेलर के ऊपर इम्प्लाई होती है. कंडीशन एज टू टाइटल. सेलर के पास टाइटल, अच्छा टाइटल है. सेल बाय डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सेल कर रहे हो, इट इज एन इम्प्लाइड कंडीशन. इम्प्लाई कंडीशन इम्प्लाई होती है सेलर के ऊपर. सेल बाय सैंपल, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल. अगर सैंपल देख के आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मान लीजिए चावल के नमूने आपने देखा है कि भाई सैंपल दिखाया है, और आप सामने वालों से बोलते हो कि भाई इतना सारा पोता हमको दे देना करके, तो सैंपल, तो इट शुड बी द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल इज ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, फॉलोइंग रूल्स आर अप्लीकेबल.
ओके, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, कुछ सैंपल आप देखते हैं तो फॉलोइंग रूल्स आर अप्लीकेबल. See, there is an implied condition that the bulk shall correspond with the sample in quality. जो bulk आप ले रहे हैं, buyer ले रहा है, it should correspond to with the sample in quality. जो sample आपने देखा है, जो bulk आपने देखा है, दोनों correspondence होना चाहिए quality में, ना कि अन्य कोई दूसरा, जैसे चावल, गेहूँ, दाल. ओके, the buyer shall have a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample. आप बायर है तो आपको अपॉर्चुनिटी है कि कंपेयर कर सकते हैं बल्क और सैंपल को. द गुड्स सोल्ड मस्ट बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट. जो गुड्स सेलर बेच रहा है वो डिफेक्ट से अलग होना चाहिए, वो फ्री डिफेक्ट होना चाहिए. विच वुड नॉट बी एपरेंट ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ सैंपल. ओके, it makes clear that the seller cannot be held responsible for any apparent or visible defect which are easily discoverable by an ordinary prudent man. Okay, sale by sample. Now next point here is sale by sample as well as by description. If the goods are sold on sample as well as description, then there is an implied condition that the bulk of the goods must correspond with a sample as well as description. जो description में लिखा है, जो sample आपने देखा है, जो sample देख के फिर bulk आप देखते हो, तो दोनों goods में समानता होनी चाहिए. यानी आपने सैंपल देखा था चावल का नमूने का, या फिर आपने सैंपल देखा था कुछ ऐसे कॉस्मेटिक्स की, तो आप बल्क में देखते हो कि वही ब्रांड या वही ट्रेडमार्क का कॉस्मेटिक आपके पास आया है, या फिर कोई शूज़ है, कोई ट्रेडमार्क का शर्ट्स है, पैंट्स है. तो इस प्रकार का जो कोई ट्रेडमार्क का रहता है तो सैंपल आप देखते हो, बल्क दोनों करस्पॉन्डेंस सेम होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी सेम होना चाहिए. कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस. देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस ऑफ गुड्स सप्लाइड अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. ओके, there is no implied condition. In other words, it is the duty of the buyer to satisfy himself. आप अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. देयर इज़ नो इम्प्लाइड कंडीशन, वारंटी नहीं है कि क्वालिटी फिटनेस कुछ गुड सप्लाई किया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में वो अच्छा है. तो यानी जो बायर जो कोई गुड्स खरीदता है तो ही शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द क्वालिटी एंड सूटेबिलिटी ऑफ द गुड्स एज पर हिज रिक्वायरमेंट. तो आपको गुड्स अच्छी तरीके से देखना है. कुछ बाज़ार में जाते हैं, जब कुछ ड्रेसेस देखते हैं, मान लीजिए कुछ ड्रेसेस देखते हैं और आपको बल्क में लेना है बेचने के लिए, आगे बेचने के लिए, तो आपको गुड्स देखना है, सेटिस्फाई करना है, क्वालिटी है, सूटेबिलिटी है कि भाई एज़ पर मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. दिस इज़ द जनरल रूल. कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, ये बायर के राइट्स है कि वो खुद सेटिस्फाई करे. हाँ, बट देर आर सर्टन एक्सेप्शंस. जनरल रूल तो है बायर का, पर सर्टन एक्सेप्शंस है. तो बायर सेलर को ही सेलर के ऊपर विश्वास करके जो गुड्स ले रहा है, तो देर आर सर्टन एक्सेप्शंस. वो एक्सेप्शंस क्या है? द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच गुड्स आर रिक्वायर्ड हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड. अगर बायर ने डिस्क्लोज किया है एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली by the buyer to the seller. Following exceptions. गुड्स कब रिजेक्ट कर सकता है? जब बायर ने स्पेसिफिकली बोला है सेलर को कि भाई मुझे इस प्रकार का गुड्स चाहिए. इफ द बायर रिलेज ऑन द सेलर स्किल और जजमेंट, तब वो गुड्स रिजेक्ट कर सकता है. द बायर रिले कर रहा है सेलर के ऊपर, उसके स्किल के ऊपर, उसके जजमेंट के ऊपर. द सेलर यूजुअल बिजनेस मस्ट बी टू सेल सच गुड्स. तो सेलर का बिजनेस ये होना चाहिए कि वो ही गुड्स वो बेचे. सो इन दिस अबाउ 3 एक्सेप्शनल केसेस देर इज एन कंडीशन दैट द गुड्स मस्ट बी रीजनेबली फिट फॉर द पर्पस फॉर विच द बायर वॉन्ट्स टू परचेज देम.
तो यहाँ पर एक कंडीशन है, द गुड्स जो ले रहा है बायर, जिस पर्पस के लिए ले रहा है वो फिट होना चाहिए उसके हिसाब से, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से. इफ द बायर बाइज ए स्पेसिफाइड आर्टिकल अंडर इट्स पेटेंट नेम और ट्रेड नेम एंड डज नॉट रिले ऑन सेलर स्किल और जजमेंट, then there is no applied condition as to fitness for any particular purpose. See, if the buyer buys a specified article under its patent name, अगर buyer बाई करता है कुछ आर्टिकल ऐसे पेटेंट नेम के ऊपर, ट्रेड नेम के ऊपर, एंड डज नॉट रिले, अगर वो रिले नहीं करता है सेलर के स्किल और जजमेंट के ऊपर, सेलर का जो जजमेंट है, स्किल है, उसके ऊपर नहीं रिले करता है, तो देर इज़ नो अप्लाइड कंडीशन, तो वहाँ पे वो कंडीशन अप्लाई नहीं होता है फिटनेस के लिए. ओके, फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस, तो दिस कंडीशन विल नॉट अप्लाई. तो एक्सेप्शनल केसेस 3 है, जब खुद बायर होके बोलता है कि भाई सेलर को कि भाई आपके स्किल और आपके जजमेंट के ऊपर मुझे विश्वास है, आप ही मुझे मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे गुड्स दे सकते हैं, तभी वो. अगर ऐसा नहीं मिला है तो उस हिसाब से बायर रिजेक्ट कर सकता है गुड्स, अन्यथा नहीं. नाउ 6th पॉइंट वी विल सी हियर, कंडीशन एज टू मर्केंटेबल क्वालिटी. अभी मर्केंटेबल क्वालिटी मीन्स गुड्स आर रीजनेबली सीलेबल अंडर द डिस्क्रिप्शन बाय विच दे आर नोन इन द मार्केट. कुछ भी मार्केट में जो गुड्स रहता है वो सील रहता है, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सील रहता है. इट मीन्स दैट गुड्स हैव यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू. उसकी यूज वैल्यू होती है, उसकी एक्सचेंज वैल्यू होती है फॉर द ऑर्डिनरी पर्पस फॉर विच सच गुड्स आर सोल्ड. अभी फॉर एग्जाम्पल थर्मोमीटर, अगर that does not show the temperature, or a polythene milk bag out of which the milk leaks. थर्मामीटर टेम्परेचर नहीं दिखाता है, मिल्क बैग अगर लीकेज हुआ है वो कंसिडर्ड नहीं होता है कि वो मर्केंटेबल क्वालिटी की है. इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड दैट इट इज अ मर्केंटेबल क्वालिटी. सो देर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन एज टू मर्केंटेबल क्वालिटी ऑफ गुड्स. इफ द गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, अगर गुड्स सोल्ड किया है डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, द सेलर डील्स इन द गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, और अगर सेलर डील कर रहा है उसी गुड्स उसी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, या फिर द बायर हैज नॉट एग्जामिन द गुड्स, अगर बायर ने एग्जामिन नहीं किया है गुड्स को. ओके, अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं. पी आस्क्ड फॉर अ बॉटल ऑफ ginger wine at Q's restaurant. While P was drawing the cork, the bottle broke at the neck and injured him. P ने क्या किया? asked for a ginger wine. Sorry. P asked for a bottle of ginger wine at Q's restaurant. Q के रेस्टोरेंट में P ने जिंजर वाइन मंगवाई. While P was drawing the cork with a corkscrew, the bottle broke at the neck and injured him. तो P ने जो बॉटल को खोला तब वो ब्रोक हो गई और Q के और P के नेक के ऊपर इंज्योर हो गई. The court held that sale was by description. तो सेल डिस्क्रिप्शन के हिसाब से था. Since the bottle was not of merchantable quality, कि बॉटल की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो बी ने रिकवर किया डैमेजेस, तो ही वॉज एंटाइटल्ड टू रिकवर द डैमेजेस. सो दिस इज मोरेली वर्सेस फिच एंड गिबन्स. ये केस फेमस है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस केस. नाउ 7th पॉइंट इज कंडीशन एज टू होलसमनेस. वी आर स्पीकिंग अबाउट implied condition. Okay, condition as to wholesomeness. This condition is implied in the case of sale of eatables, provisions or foodstuffs. ये condition कहाँ पे है imply की जाती है? eatables में, foodstuffs में, provisions में. So condition as to wholesomeness means that the goods must be fit for human consumption. तो जो goods आप ले रहे हैं वो human consumption के लिए fit होना चाहिए. देर इज ए इम्प्लाइड कंडीशन, वहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन एज टू होलसमनेस आता है. अभी एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, एफ बॉट मिल्क फ्रॉम एस डायरी. मान लीजिए आपने मिल्क
मंगवाया एज डायरी से। द मिल्क कंटेन टाइफॉइड जर्म्स, उसमें टाइफॉइड जर्म्स था। F's wives consumed the milk, became infected and died. A was liable for the damages because the milk was not fit for the human consumption. तो यहाँ पे कंडीशन एज टू होलसमनेस नहीं था, तो यहाँ पे ये फिट नहीं था फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन में। ओके, फ्रॉस्ट वर्सेस रे एल्सबरी डेयरी कंपनी लिमिटेड 1905 का ये सबसे बड़ा केस है। तो द कंडीशन इम्प्लाइड कंडीशन शुड बी ऑफ होलसमनेस। ओके, सो द 8th point is here. Condition implied by trade usage. A condition as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed by usage of trade. तो यूसेज ऑफ ट्रेड में होता है तभी आपको मालूम पड़ता है कि भाई उसकी फिटनेस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, द पर्टिकुलर पर्पस किसके लिए आप ले रहे हैं। सो अभी एक पहले एग्जांपल पढ़ लेते हैं यहाँ पे। इन द केस ऑफ सेल बाय ऑक्शन ऑफ ड्रग्स, वहाँ पे एक ऑक्शन था ड्रग्स का यानी मेडिसिन का, सेल हो रहा था, सेल ऑक्शन का सेल था ड्रग्स के बारे में। तो देयर वॉज ए ट्रेड कंजम्पशन टू डिक्लेयर एंड डिस्क्लोज वेदर और नॉट द गुड्स आर सी डैमेज। वहाँ पे एक ट्रेड कस्टम्स था कि आपको डिक्लेयर करना है, डिस्क्लोज भी करना है, वेदर और नॉट द गुड्स आर सी डैमेज, यानी सी डैमेज तो नहीं है वो गुड्स, बट द गुड्स वेर सोल्ड विदाउट सच डिक्लेरेशन। बट वहाँ पे ऑक्शन में क्या हो रहा था, गुड्स सोल्ड किया था, डिक्लेरेशन नहीं दिया था। तो उसमें से जे ने परचेज किया उस गुड्स को, उस ड्रग्स को यानी मेडिसिन को, एंड फाउंड दैट दे वर सी डैमेज्ड, यानी सी में ट्रांजिट करते समय वो डैमेज हो गए थे। द कोर्ट हेल्ड, द कोर्ट ने क्या कहा, जे कैन रिजेक्ट द गुड्स, आप रिजेक्ट कर सकते हो गुड्स। पहले आपने डिक्लेयर नहीं किया था, फिर भी आपने खरीद लिया गुड्स, लेकिन अभी मालूम हुआ कि ये सी डैमेज है, तो यू कैन रिजेक्ट द गुड्स एंड रिकवर द प्राइस, आप प्राइस रिकवर कर सकते हो। बिकॉज सेल विदाउट सच डिक्लेरेशन, आपने सेल तो किया लेकिन डिक्लेयर नहीं किया कि भाई वो सी डैमेज है, was equivalent to saying that there was not sea damage. आपने डिक्लेयर नहीं किया तो इसका ये मतलब है कि वो सी डैमेज हुआ था, इसलिए आपने डिक्लेयर नहीं किया। जोन वर्सेस बाउडन 1813 का ये फेमस केस है। सो ए कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस मे बी अनेक्स्ड बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। जब ट्रेडिंग होता है, यूसेज होता है, तब उसकी क्वालिटी और फिटनेस मालूम पड़ता है। सो द एविडेंस ऑफ कस्टम्स एंड यूसेज इज एडमिसिबल when the written contract are silent. अगर उस एविडेंस में, रिटन कॉन्ट्रैक्ट में कुछ शब्द ऐसे साइलेंट है ऑन सर्टन मैटर्स, कुछ मैटर ऐसे जब आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते यानी करते हैं, आप साइलेंट है उस बात में, तो हाउ एवर अनरीजनेबल कस्टम विल अफेक्ट द पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट। जो अनरीजनेबल बातें हैं आप वो सामने पार्टी को अफेक्ट करती है कॉन्ट्रैक्ट में। सो इट इज़ बेटर यू डिक्लेयर एंड डिस्क्लोज व्हाट आर द डैमेजेस आर देयर, अन्यथा वो कोर्ट में जाएगा और आपसे क्लेम करेगा डैमेजेस और रिकवर प्राइस करेगा। ओके, सो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट इम्प्लाइड कंडीशन, नो इम्प्लाइड वारंटी। नो वी विल सी व्हाट इज इम्प्लाइड वारंटी। वारंटी एज टू क्वाइट पोजेशन। ओके, in a contract of sale there is an implied warranty that the buyer shall have and enjoy possession of the goods which he has purchased from the seller. Buyer can enjoy the goods, possession of the goods which he has purchased from the seller. The buyer has right to enjoy and possess the goods peacefully and absolutely. If the buyer's possession is disturbed by a third party, अगर buyer ने कुछ खरीदा है, he has totally right to enjoy, अगर उसमें disturbance third party की है, then such buyer can recover damages from the seller. तो वो seller के पास जाके वो damages claim कर सकता है। Okay? Warranty as a quiet possession. Second point is warranty of freedom from encumbrances. There is an implied warranty that the goods are free from any charge
और एनकम्ब्रेंसेस इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पर्सन। जब कोई बायर जाके कुछ बाई करता है तो वो सोचता है कि गुड्स आर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, कि भाई इसके ऊपर कुछ चार्जेस नहीं है, कुछ एनकम्ब्रेंसेस नहीं है, थर्ड पर्सन उसको क्लेम नहीं कर रहा है। इफ द बायर इज नॉट अवेयर ऑफ सच चार्ज और एनकम्ब्रेंस, अगर बायर अवेयर नहीं है कि उस गुड्स के ऊपर कुछ चार्जेस है, कुछ एनकम्ब्रेंस है, लेकिन बायर को मालूम नहीं है, गुड्स आर फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस मीन्स नो वन एल्स हैज द इंटरेस्ट ऑफ एनी काइंड इन द गुड्स सोल्ड टू द बायर। इफ द एनकम्ब्रेंसेस आर नोन टू द बायर, अगर बायर को मालूम हो गया कि भाई वहाँ पे कुछ एनकम्ब्रेंसेस है, यानी किसी गुड्स के ऊपर किसी का इंटरेस्ट है, दिस क्लॉज विल नॉट बी अप्लीकेबल, ये क्लॉज अप्लीकेबल नहीं हो सकता। इफ द बायर इज फोर्स टू पे एनी अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ एनी चार्ज और एनकम्ब्रेंसेस ऑन द गुड्स परचेज, ही कैन रिकवर सेम फ्रॉम द सेलर। अगर बायर को फोर्स किया गया है, उस गुड्स के ऊपर चार्जेस लगाया है, या फिर उस गुड्स के ऊपर थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट है, तो सॉरी ओके, अगर बायर को मालूम हो गया कि एनी अमाउंट ऑफ पेमेंट आई हैव टू मेक ऑन दिस गुड्स, if there is any charge or there is any encumbrance on the goods purchase, तो वो सेलर के पास जाके अमाउंट रिकवर कर सकता है। ओके, वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस। थर्ड पॉइंट हियर इज वारंटी ऑफ डिस्क्लोजिंग द डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। See, there is another implied warranty on the part of the seller that in the case of the goods sold are of dangerous nature or they are likely to be dangerous to the buyer, the seller in such case should warn the ignorant buyer। यहाँ पे सेलर को बोलना चाहिए कि भाई ये गुड्स जो हमें बेच रहा हूँ ये डेंजरस है, बायर को। probable danger if the seller commits breach of this warranty, अगर सेलर कमिट करता है, कैंसिल करता है, कमिट ब्रीच ऑफ दिस वारंटी, अगर वो नहीं बताता है बायर को, तो the buyer gets the right to claim damages for the injury caused to him. In such cases, seller is bound to warn the buyer if the goods are of dangerous nature। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, C purchased a tin of disinfected powder from A. A knew that it was dangerous to open the tin without special care, but A did not warn C about it. Ultimately, when C opened the tin in the normal way, the disinfected powder flew into C's eyes and injured her. C filed a suit against A for damages. Court ने कहा that C is entitled to get the damages from A for not warning the buyer of the dangerous nature of goods. Okay, Clark versus Army Navy Corporation Society Limited. So there is a duty on the part of the seller to warn the buyer. The fourth point is here, implied warranty as to quality or fitness। there is a warranty imply होती है quality और fitness की। An implied warranty as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed by the usage of trade। अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, if in a particular area there is a warranty that the seller of ready-made clothes has to pay compensation on the color of the clothes fading within a month, every seller of ready-made clothes in that area is bound by this warranty। अभी किसी एरिया में अभी कुछ एक महीने में अगर आपने कपड़ा पहना है वो फेड हो गया है, तो एवरी सेलर ऑफ रेडीमेड क्लोथ्स इन दैट एरिया इज बाउंड बाय दिस वारंटी। तो उस एरिया में है जो कपड़े बेच रहे हैं उसकी वारंटी बनती है, तो एवरी सेलर ऑफ रेडीमेड क्लोथ्स इन दैट एरिया इज बाउंड बाय दिस वारंटी, दे आर बाउंड बाय दिस वारंटी। ओके,
So this is implied warranty. Warranty as to quiet possession, warranty of freedom from encumbrances, warranty of disclosing the dangerous nature of goods, implied warranty as to quality of fitness. तो सेलर के ऊपर ये जो वारंटी है ये पोजीशन, एनकम्ब्रेंसेस, डेंजरस नेचर की जो गुड्स है, क्वालिटी और फिटनेस है, ये सब बाउंड होता है उनके ऊपर. ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर. So next video we will see what is doctrine of caveat emptor and exception to the rule of caveat emptor. Okay, see you in the next video.